امام عاشقان ہنرمند، اے امام عاشقان ہنرمند، شاد آتا ہے ہمیں تیرا وہ خواب ارجمند۔ حکیم ہے امت کا تو، ہمدرد ہے تیرا خیال، اس لیے تو لوگ کہتے ہیں تمہیں محمد اقبال۔ وطن مسلم کو ملا شیبی تھی تیری جستجو، نوجوانوں کو ملے میری نظر شیبی تھی تیری آرزو۔ تو حسین ہے اور ہے تیرا ایمان تجھ سے حسین، تو حسین ہے اور ہے تیرا ایمان تجھ سے حسین، پیش کرتے ہیں ہمارے دل تمہیں خراج تحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک سورج چاند رہے گا، 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 جشن اقبال، جشن اقبال، بابا مہر علی لاہوتی۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جشن اقبال۔ آپ سب دوستوں کی سماعتوں کی نظر مسز حضرت بابا مہر علی لاہوتی سرکار۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر بشر کو ضرورت ہے، ہر بشر کو ضرورت ہے بشریت کی زمانے میں، گم خاک میں خود کو تلاش کر شریعت کے پیمانے میں۔ حاضرین محفل، 9 نومبر پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیالات میں چکر لگاتا ہے۔ جس وقت سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول میں غرق ہو کر خالق دو جہاں اور آدم کے ملاب پر بات چیت کی، تو اس وقت سے وہ مسلمان جو اسلام کی اصل حقیقت سے واقف نہیں ہے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر سوال اٹھاتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نمازی نہیں، اقبال کے منہ پر داڑھی نہیں۔ 9 نومبر 2020 کو نیٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کو بابا لاہوتی نے دیکھا۔ اقبال کے منہ پر داڑھی نہیں، اقبال بے نمازی ہے۔ اس سوال کو بابا لاہوتی نے محسوس کیا۔ ویڈیو وائرل کرنے والے نے سوال کے جواب میں جو بیان کیا، وہ بیان آپ نے بابا جی سے زیادہ دیکھا اور سنا ہوگا۔ بابا جی نے سوال کے جواب پر توجہ نہیں کی، بلکہ سوال پر نگاہ رکھتے ہوئے سوچا، اقبال کا داڑھی نہ رکھنا اقبال سے نہیں، اقبال کے عشق سے پوچھتے ہیں، کیونکہ عشق کبھی اور کہیں جھوٹ نہیں بتاتا۔ بابا جی نے عشق سے پوچھا، اقبال نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ اقبال بے نمازی کیسے؟ عشق نے جواب دیا، بابا جی آپ اقبال کا اپنے والد کو لکھا ہوا یہ خط پڑھیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ حاضرین محفل، بابا جی خط کو حرف و حرف تو نہیں، لیکن خط کے متن کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کو لکھتی ہیں، جناب عالی میرے پاس ایک شخص آیا جو دیکھنے میں صاحب ثروت گھرانے کا خوبصورت با ادب فرد معلوم ہوتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے آنسو نکلنے لگے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے بندے تو کیوں رونے لگ گیا؟ مجھے بتا تجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ شخص بولا، حضرت میرے آنسو غم یا کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں نکلے، میرا رونا اس خوشی میں ہے
जो मुझे ख्वाब में नसीब हुई। जनाब आली, मैं ख्वाब में एक मस्जिद में गया। लोग नमाज अदा करने के लिए खड़े हो रहे थे। अभी तकबीर उला नहीं हुई थी। मैंने ये आवाज़ सुनी कि इकबाल आ गया। मैंने दरियाफ्त किया तो पता चला कि हजूर अमामत के लिए मसल्ले पर खड़े हैं और इकबाल का इंतजार हो रहा है। थोड़ी देर में एक नौजवान दो अशखास के हमरा मस्जिद में दाखिल हुआ तो आवाजें सुनाई दी कि इकबाल आ गया। इकबाल के हमरा हजूर के पीछे मैंने भी नमाज अदा की। आंख खुली तो पता चला कि ये माजरा ख्वाब की कैफियत में था। मैंने अपने इस ख्वाब को एक बुजुर्ग मुफ्ती को सुनाया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात तो नहीं की, लेकिन उनकी तहरीरों को पढ़ने से मालूम होता है कि इकबाल आशिक़े रसूल दरवेश हैं। उस बुजुर्ग की बातों ने मुझे एहसास दिला दिया कि मैं ज़ाहिर में इकबाल को देखूं। इकबाल का पता लेकर मैं लाहौर चला आया, आपसे मिला। आपको देखकर आंखों को यकीन हो गया कि ये वही इकबाल है जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। आपको ख्वाब में देखकर आपको ज़ाहिर में हूबहू देखने से मेरी आंखों में खुशी से आंसू आ गए कि अगर ख्वाब में देखा हुआ ये चेहरा हकीकत है तो फिर मुझे नबी करीम सरवरे दो आलम की ख्वाब में हकीकी ज़ियारत हो गई। हाज़रीन महफिल, हजूर की अमामत में तकबीर उला के साथ नमाज अदा करने वाले इकबाल को दुनियादार अमामों के पीछे इन मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले नमाजी इकबाल को नमाज की हालत में कैसे देखेंगे। बाबा जी ने खत की तहरीर पढ़ी तो इश्क ने कहा, इकबाल जिंदा दिल नमाजी है। हाज़रीन महफिल, हमारे बाबा जी का फरमान है, हम वजूद आदम से एक तलक बना रहे हैं। सो गई जो खाके आदम में वो दुनिया जगा रहे हैं। वादिये खुदी में वो दुनिया ही रहेगी, हर सांस से जो अपने अल्लाह हो कहेगी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुदी के आरफों का मकाम है बादशाही, रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह स्याही। हाज़रीन महफिल, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फलसफा खुदी को कुछ लोगों ने देखे बगैर, समझे बगैर, बर्ताव के बगैर ही गलत रंग देकर लोगों के दिलो दिमाग में खुदी के बारे में कदूरत फैलाने की नाकाम कोशिश की है, जिसका खुदी से कोई वास्ता नहीं। खुदी तो अल्लाह तबारक तआला की अता करदा नेमतों से अफजल तरीन नेमत है। खुदी का तकब्बर या गरूर से मलाप तो अहम काना सोच ही कर सकती है। खुदी का खुद गर्जी, गरूर या तकब्बर से कोई तलक नहीं। खुदी को खाक में पैदा करने का राज तो खुदा का रसूल ही जान सकता है। खुदी को बुलंद करने का नुस्खा हकीमुल अम्मत शार आशिक़े रसूल ही समझ सकते हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत ने खुदी को देखा, खुदी को समझा, खुदी से तल्लक जोड़कर ही तो फरमाया, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्लाम का पहला कलमा है। इसलिए खुदी को बुलंद करने का मकसद इस्लाम को बुलंद करना है। इस्लाम की बुलंदी से अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होगा।
रज़ाए इलाही नसीब होगी। इस्लाम ने अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए आदम को अपना अशरफी मकाम पैदा करने के लिए नमाज, रोज़ा, हज, कुर्बानी जैसी इबादत फ़र्ज की हैं। इन इबादतों को ओ लेवल पर अदा करने के लिए खुद ही को बुलंद करना होगा। अल्लामा फरमाते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। हाज़रीन महफिल, अमल का करना, अमल किस तरह करना, अमल का इव्स क्या है और अजर क्या है, इस दुनिया में अमल का अजर क्या है और आखिरत में इस अमल का अजर क्या है, इस राज को तो अल्लाह के महबूब नबी ही समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि अमल का मकाफात क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन का मेराज है। मगर खुशू खुशू के साथ अगर आदमी की खुदी बुलंद नहीं है तो नमाज में खुशू खुशू का पैदा होना नामुमकिन। हाज़रीन महफिल, मुल्क के हुक्मरान मदीना स्टेट तो बना सकते हैं, लेकिन मदीना स्टेट के बानी के दौर की, मदीना स्टेट के माहौल की फ़ज़ा इबादत को उस यकीन और खुलूस के साथ अदा करने से ही पैदा होगी। इबादत में उस दौर के खुलूस और खुशू को पैदा करने के लिए फ़लसफ़ा खुद ही को अपनाना पड़ेगा, वरना खिर्द ने कह भी दिया, ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह को मुसलमान करने के लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। हाज़रीन महफिल, मन में डूबने का तरीका, कब तक डूबना, कहाँ तक डूबने का भेद सिलसिला लाहौती बताने के लिए कोशा है। हाज़रीन महफिल, अल्लाह ताला ने वजूद आदम को खलका और उसे जिंदगी अता की। जिंदगी को दो कुव्वतों से नवाजा, एक कुव्वत का नाम ध्यान है, दूसरी का नाम सांस है। इन दो ताकतों से तल्लक बनाकर जीना ही खुदी की तरबियत है और इन दो कुव्वतों से बेखबर रहना मुर्दा दिली है, जिसके लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। दिल को जिंदा करना एक फन है। ये फन ध्यान को ध्यान में रखने से आता है। ध्यान को ध्यान में रखना मुश्किल काम है। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए फरमाया, कुरान में हो गोता जन ऐ मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दते करदार। जिद्दत आने वाले वक्त के मामले का नाम है। आने वाले वक्त के इंसान को खुदी की बुलंदी की जरूरत होगी। खुदी की बुलंदी का अजर ही है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुदी की बुलंदी के लिए ध्यान को तरह तरह के ख्यालों से पाक करना है। गुनागू वाले अंदेशे से अलैदगी इख्तियार करनी है। गुनागू से अलैदगी का ढंग सिखाना राह इकबाल एकेडमी का सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट इसलिए भी है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, जुर्रत है तो अफकार की दुनिया से गुजर जा। जुर्रत है तो अफकार की दुनिया से गुजर जा, है बहरे खुदी में अभी पोशीदा जजीरे। खुलते नहीं इस गुलज़मे खामोश के असरार, जब तक तू इसे ज़रबे कलीमी से न चीरे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हाज़रीन महफिल, अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़ा खुदी को अपनाने की तौफीक अता फरमा।
اے اللہ جتنے لوگوں نے فلسفہ خودی کو پھیلانے کی جدوجہد میں مالی اور بدنی حصہ لیا ہے، اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے۔ اے اللہ بابا لاہوتی کا رسول اللہ سے پیار کا واسطہ اس محفل میں جتنے لوگ شریک ہیں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دے، آمین۔